Hello students, last lecture we studied about muscular tissue in our online class. So today we have to talk about next tissue, that is connective tissue. As the name indicates, connective tissue which connect, we can say, different organs or form a connectivity in between different organs and different parts of the body. That's why it's known as connective tissue. So this connective tissue is most abundant and widely distributed. अगर कोई पूछे कि which tissue is most abundant and widely distributed, so that is connective tissue, because you can find everywhere connective tissue किसी लेयर के नीचे किसी के साथ, और जहां भी that means body में space है, gap है, that is filled by specific tissue, a type of connective tissue. So if we talk about component, like in last class we studied about muscular tissue. We have seen three different types of muscle cells are there, or three different types of tissues are there, like we can say cardiac है, statid और smooth है. In one type of tissue there is only one type of cells only, but there is a we can say something different in connective tissue. So connective tissue present in a, we can say, a substance that is known as matrix, like non-cellular substance that is known as matrix. If you ever tried custard, जो आपने खाया तो you have seen that like there is a fluid or liquid like structures inside some fruit, some other things are also there. तो अब वो जितने भी तरह की fruits है, चाहे उसमें अनार हो या किसी और fruit हो या कोई बनाना हो या कोई apple के उसमें pieces हो, तो these are the cells. Okay, like if we talk about किसी ball में हम उसमें डाले हैं तो उसमें हमें अलग अलग तरह की क्या दिखेंगे, pieces of fruit दिखेंगे. These pieces of fruits are the cells, and the rest part, if we remove the, we can say, these pieces of fruits, तो वो जो नीचे बच गया, that is known as ground substance, that is known as ground substance, and this ground substance is known as a matrix. If you remember the word cytosol, we have studied about cytoplasm. Cytoplasm means the fluid inside the cell membrane. ओके तो उसमें डिफरेंट सेल ऑर्गेनल्स थी, उन सारी सेल ऑर्गेनल्स को निकाल दो तो वो क्या बन जाएगा, साइटोसॉल. तो वो साइटोसॉल वी कैन से मैट्रिक्स है. द सेम मैट्रिक्स वर्ड वी हर्ड इन, वी कैन से इन केस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. तो माइटोकॉन्ड्रिया में मैट्रिक्स था और क्लोरोप्लास्ट में क्या था, स्ट्रोमा था. तो यहाँ पर वो क्या है, मैट्रिक्स है. ओके किसी फ्लूइड में और किसी ऐसे सेमी फ्लूइड और सॉलिड सब्सटेंस में cells are embedded. So if we talk about component, then there is a matrix, and inside matrix there are cells. So in this matrix is mainly made up of proteins है, polysaccharides है, and fibers है. And actually these all things are secreted by the different types of cells only. So there are many different types of cell according to type of connective tissue. जैसे blood is also a type of connective tissue. We know that there are three different types of main cell in blood, that is RBC, WBC and platelets. बाकी और cells भी हैं. तो अलग अलग cells हैं, वो ही क्या करती हैं, substance secrete करती हैं. But here in this matrix, the main component of matrix is, we can say, fiber, which is essential for, we can say, main working of this connective tissue. But not necessary that fibers are present in all kinds of connective tissue. Like in blood, there is no fiber found in blood. तो blood में नहीं है. तो ऐसा नहीं है कि fiber found in every type of, we can say, connective tissue. But main component क्या है, वो protein है, polysaccharide and fiber है. These are the general things. Then there are many kinds of cells. We'll discuss later in this video segment. So fibers. तो fibers क्या है, as we know that fiber like thread like structure. तो उनका काम क्या होगा कि they provide strength, elasticity and flexibility. Okay, तो इसका मतलब ये जो टिश्यू है ये एक्सपेंड कर सकते हैं, रिलैक्स कर सकते हैं, मूवमेंट, दैट मीन्स फ्लेक्सिबिलिटी शो कर सकते हैं. ओके अकॉर्डिंग टू देयर नीड. So if we talk about fibers, there are three different kinds of fiber. One is known as collagen fiber, second is known as elastic, and third is known as reticular. Okay, so if we talk about collagen fiber, then they are found in bundle. Like ये fiber bundle में होते हैं, and they are white in color. They are white in color. That's why also known as white fibers. They are white in color, that's why they are known as white fiber. So collagen are the white fiber. They are present in
वी कैन सी इन फॉर्म ऑफ बंडल, दे आर अनब्रांच। अनब्रांच मीन एक सिंगल है और वो किस में प्रेजेंट होती है, दे आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ बंडल। देन दे आर थिक, थिक है, देन लॉन्ग है, वेवी है, दे शो द वेवी लाइक अपीयरेंस, टफ है एंड नॉन इलास्टिक है। तो इसमें ध्यान रखना कि जो कोलेजन फाइबर है दे आर नॉन इलास्टिक। ओके, अब जो व्हाइट फाइबर है उसके थोड़ी सी अलग कैरेक्टर किसमें मिलेंगे हमें, इलास्टिक फाइबर में। सो इलास्टिक फाइबर नाम से पता चला है इलास्टिक। सो दे आर सिंगल, सिंगल है बट दे आर फाउंड ग्रुप येलो कलर के हैं। तो ड्यू टू येलो कलर दे आर ऑल्सो नोन एज येलो फाइबर्स। ओके, इनको येलो फाइबर्स बोलते हैं। सो दे आर सिंगल, येलो, ब्रांच्ड, थिन, लॉन्ग, स्ट्रेट एंड इलास्टिक। ब्रांच्ड है, वो कैसे थे, सिंगल थे, ये क्या है, ब्रांच्ड है, और थिन है यानी कि इसके बिल्कुल क्या है, अपोजिट है, एंड स्ट्रेट है, वो वेवी थे। तो यानी कि ये इस तरह की शेप बनाएंगे, ये इस तरह की शेप बनाएंगे। इफ यू टॉक अबाउट के देयर अकरेंस, इफ यू टॉक अबाउट कोलेजन, सो दे आर मोस्ट अबंडेंट, they are most abundant in tendon and elastic they are most abundant in ligament। okay, if you remember क्लास 9 में भी हमने पढ़ा था, या वैसे आपने कहीं पढ़ा हो तो लिगामेंट क्या करते हैं, बोन को बोन से जोड़ते हैं, और जो टेंडन क्या है, बोन को मसल से जोड़ते हैं। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट फाइबर दैट इज रेटिकुलर। एनसीईआरटी में इसके बारे में ज्यादा दिया हुआ नहीं है। एनसीईआरटी में गिवन ओनली टू टाइप्स ऑफ फाइबर, वन इज व्हाइट फाइबर एंड अदर इज नोन एज येलो फाइबर। तो व्हाइट फाइबर में कोलेजन को कैरेक्टर्स दिए हैं, येलो फाइबर में इलास्टिक के। नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ इज रेटिकुलर। रेटिकुलर नाम से पता चला, रेटिकुलर दैट मींस नेटवर्क बनाता है। सो दे आर आल्सो सिंगल एंड वाइड। देखो ये भी वाइट है, ये भी वाइट है, बट फर्क क्या है, ये बंडल में थे, ये सिंगल थे, ये अनब्रांच थे, ये ब्रांच है। तो रेटिकुलर दे आर सिंगल, वाइड, ब्रांच, फॉर्म इन नेटवर्क, शॉर्ट, डेलिकेट, शॉर्ट होते हैं, एंड जो इलास्टिसिटी है दैट इज डेलिकेट इलास्टिसिटी। तो दे मेनली फाउंड इन बोन मैरो। जो बोन मैरो हमारे बोन के अंदर की जो कैविटी है, लॉन्ग बोन के अंदर की जो खाली जगह है, दैट इज नोन एज बोन मैरो। ओके, सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइबर्स। अब जब मैं आगे डिस्कस करूंगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू, तो मैं सिर्फ यही कहूंगा कि देयर आर कोलेजन फाइबर, देयर आर इलास्टिक फाइबर, और देयर आर रेटिकुलेट और रेटिकुलर फाइबर्स आर देयर। ओके, तो कोलेजन दैट मींस दे आर इन बंडल, ये जो शेप है ये ध्यान रखना। देन इलास्टिक के लिए ये वाली शेप ध्यान रखना, और दिस इज द ब्रांच, इसको मैंने नेटवर्क बना दिया, तो ये वाले ध्यान रखना। सो हियर यू कैन गिव द डिफरेंस बिटवीन डिफरेंट काइंड्स ऑफ these fibers। ओके, तो ये स्ट्रक्चर ध्यान रख लेना, ये व्हाइट है, येलो है, व्हाइट है, क्लियर है। नाउ मूव टू डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ सेल्स, और व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स एंड देयर फंक्शंस। Now see here different kinds of cell like fibroblast, adipose cell, plasma cell, mast cell, macrophage, mesenchyme cell, lymphocyte, chromatophore, chondrocyte cells, या osteocyte cells। These are the general cell, like most of cell found in simple type of simple connective tissue, we can say common connective tissue, and some are found in specific, and I have not included here most of blood cells। So फाइब्रोब्लास्ट नाम से पता चल रहा है वो सिक्रेट करती है फाइबर्स को। देन एडिपोज सेल्स, एडिपोज वर्ड हम यूज करते हैं फैट के लिए, सो दे स्टोर फैट। तो जो फैट टिश्यू होंगे तो फैट स्टोर करने वाले उनमें एडिपोज सेल्स होगी, जिनमें मेनली फाइबर प्रेजेंट होगा, उनमें ये अबंडेंट होगी। देन प्लाज्मा सेल, ये सिंथेसाइज करती है एंटीबॉडीज। देन मास्ट सेल, ये हिपेरिन, हिस्टामिन और सेरोटोनिन सिक्रेट करती हैं, ये एंटी दैट मींस दे इन्वॉल्व इन इन्फ्लेमेटरी responses during allergic reaction or any kind of other reaction. We will talk about this in chapter blood circulation. So macrophage जो सेल डेब्रिस को इंजेस्ट करती है, लाइक सेल में डिफेंस का काम करती है, if there is a debris उसको ये डाइजेस्ट कर लेगा। देन मेसेनकाइम सेल है दैट गिव राइज टू वेरियस काइंड्स ऑफ अदर सेल्स, इससे बाकी सेल्स है वो बनती हैं। देन लिम्फोसाइट्स है अगेन इंजेस्ट सेल डेब्रिस। देन क्रोमेटोफोर एज द नेम इंडिकेट, क्रोमा मीन कलर,
तो वो कलर देती है जैसे स्किन को। देन कॉन्ड्रोसाइट्स दे आर फाउंड इन कार्टिलेज एंड ऑस्टियोसाइट दे आर मेनली फाउंड इन बोन्स। ओके, सो दिस मस्ट डिटेल नॉट गिवन इन एनसीईआरटी। ये कुछ नाम दिए हैं, बस ये कर लेना लेकिन, ठीक है। नाउ कम टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज। Now come to different kinds of connective tissue. Brief only. Many of tissue which are made up of, that means these connective tissue, उनका डिटेल है आगे फर्दर ह्यूमन फिजियोलॉजी में, तो हम वहाँ पर उनको करेंगे, चाहे वो बोन की बात करें या ब्लड की बात करें और एनी अदर ऑर्गन। ओके, सो इफ यू टॉक अबाउट different types of connective tissue, then there are three different kinds of connective tissue. One is known as loose connective tissue, second is known as dense connective tissue, and third is known as specialized connective tissue. So as the name indicate, loose connective tissue, that means cells are loosely arranged in a matrix. That means there is no particular pattern or they are not packed with each other, so thereby they are known as loose connective tissue. So fiber है वो loosely arranged होता है. So there are two types of tissue. One is known as areolar tissue and second is known as adipose tissue. As I told you earlier, adipose जहाँ पर word आ जाए तो that means these tissue store the fat. तो under the skin मैंने जगह स्टमक के आसपास, लिवर के आसपास ऐसे टिश्यूज हैं जो स्टोर फैट करते हैं। ओके, सो दैट मीन्स देर आर मैनी सेल्स, फैट सेल्स विच स्टोर द फैट। इफ देर इज एक्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट और फूड है तो उसको हमारी बॉडी फैट में क्या कर लेती है, स्टोर कर लेती है। सो वन टाइप ऑफ इज एडिपोज टिश्यू, अदर टाइप ऑफ एरियोलर टिश्यू। इफ यू टॉक अबाउट कि सबसे ज्यादा इसमें कनेक्टिव टिश्यू में कौन सा है, तो वो इसमें ये एरियोलर टिश्यू मिलेगा हमें। दैट मीन जहां भी गैप है, कोई किसी को प्रोटेक्शन देनी है, किसी की कनेक्टिविटी करनी है टू ऑर्गन की, तो वहां पर क्या होता है, एरियोलर टिश्यू होता है। एरियोलर जैसे वी कैन से लाइक एयर स्पेस। ओके, सो एरियोलर टिश्यू, सो एरियोलर टिश्यू एंड एडिपोज टिश्यू, दे आर लूज कनेक्टिव टिश्यू। इन एरियोलर टिश्यू मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स आर फाउंड। बाकी में हम देखेंगे कि 2 या 3 तरह की सेल्स है वो मिलेगी। तो जितनी सेल्स हमने पहले पढ़ी थी इनमें बहुत सारी सेल्स है जो हमें एरियोलर टिश्यू में मिलती है। ओके, द नेक्स्ट इज dense connective tissue. As the name indicate, dense, that means there is a regular pattern. So fibers and fibroblast, जो cells हैं जो secrete करती है fiber, they are compactly arranged. They are compactly arranged. So they further divide into two forms. One is dense regular tissue, that means dense regular connective tissue, then dense irregular connective tissue. Now we can say here is a एक कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट है। अब वैसे ही कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट जैसे क्लास है उसमें बच्चे एक तो बैठे हैं रैंडम लेकिन ग्रुप में है, और एक 3 ही लाइन है क्लास के अंदर और उसमें एक वी कैन से पैटर्न में बैठे हैं, तो सिर्फ उतना ही फर्क है। लाइक देयर आर 5-6 ग्रुप इन क्लास, रैंडम बैठे हैं कहीं भी, तो वो एक ग्रुप तो पर्टिकुलर क्या है, अरेंज्ड है। अगर उन्हीं को मैं 3 लाइन में कर दूं तो वो थोड़ा सा और अरेंज्ड हो जाएगा, इतना सा फर्क है। तो इसमें क्या होगा, दे आर कॉम्पैक्टली अरेंज्ड। बट डेंस रेगुलर, दैट मीन्स वहां एक रेगुलर क्या है, पैटर्न है, बट इन डेंस इरेगुलर देयर इज नॉट ए रेगुलर पैटर्न। तो हम इसमें क्या देखेंगे कि डेंस रेगुलर में क्या है, फाइबर्स आर अरेंज इन ए पैटर्न, और उन्हीं के साथ क्या है, फाइब्रोब्लास्ट सेल्स है। तो ये क्या होगी, दीज आर द फाइब्रोब्लास्ट, और ये क्या होगी हमारे पास, फाइबर्स होगी। तो दे आर इन ए वी कैन से पैटर्न, पर्टिकुलर पैटर्न, कॉम्पैक्टली अरेंज बट इन पैटर्न, बट इन दिस टिश्यू देयर इज नो सच पैटर्न। ओके, तो डेंस रेगुलर टाइप की देयर आर 2 काइंड्स ऑफ टिश्यू, वन इज नोन एज टेंडन एंड अदर इज नोन एज लिगामेंट। तो इसको आप कैसे ध्यान रखो, जैसे लिगामेंट इसको आप ऐसे याद रखो, BBL से, एक बिग बेस लीग है ना क्रिकेट की, B से बोन, N से लिगामेंट। तो दूसरा आपने आप ध्यान रख जाएगा BMT मीन्स B से बोन, M से मसल, T से टेंडन। बहुत कंफ्यूजन रहता है कि टेंडन में लिगामेंट में। तो एक टेंडन में हमने क्या डिफरेंस देखा था पहले कि इसमें कौन सा फाइबर होता है, द फाइबर इज वी कैन से कोलेजन फाइबर, और इसमें क्या होता है, इलास्टिन फाइबर। अब कोलेजन और इलास्टिन में जो डिफरेंस थे, चाहे वो पैटर्न के हो, चाहे वो फ्लेक्सिबिलिटी के हो, चाहे वो लेंथ के हो, कैसे भी हो, वो डिफरेंस क्या हो जाएंगे, टेंडन एंड लिगामेंट में हो जाएंगे। इज क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज डेंस इरेगुलर है, दैट मीन्स द फाइबर्स आर दे आर परफेक्टली अरेंज बट नॉट रेगुलर। अलग से पैटर्न में होंगे, जैसे एक ग्रुप कोई फाइबर्स का आ गया, फिर कहीं कोई सेल्स आ गई, फिर कोई फाइबर आ गया, फिर कोई सेल्स आ गई, तो स्किन में हमें ऐसे देखते हैं। ओके, देन
specialized connective tissue. So there are three different kinds of specialized tissue. They are known as cartilage, bone and blood. There is a detail of blood in chapter circulation. वो RBC, WBC के क्या क्या component है. Here we will not study about this. Then if we talk about cartilage, तो कार्टिलेज क्या है, फ्लेक्सिबल है. जैसे हमारा ये ईयर है या जो बोन्स होती है इन एम्ब्रियोनिक लाइफ. ओके, वी हैव स्टडीड द कार्टिलेजिनस फिश. उनका जो स्केलेटन है, जहां भी कार्टिलेज हमारी बॉडी में चाहे इस ट्रैकिया के ऊपर हो, ओके, तो दैट मीन दिस कार्टिलेज इज फ्लेक्सिबल. ओके, और इसका जो मैट्रिक्स है वो भी क्या है, फ्लेक्सिबल होगा एंड द सेल्स आर एम्बेडेड इन द मैट्रिक्स. तो ये जो रिच, ये भी क्या होता है, रिच इन कोलेजन फाइबर में होता है. इफ यू टॉक अबाउट बोन, तो जो बोन का जो मैट्रिक्स है दैट इज रिच इन कैल्शियम सॉल्ट एंड कोलेजन फाइबर्स आर आल्सो प्रेजेंट. तो बोन में जो मैट्रिक्स है वो क्या होगा, सॉलिड होगा. ओके, एंड दैट इज नॉन फ्लेक्सिबल. तो नॉन फ्लेक्सिबल है जिसकी वजह से जो बोन है हम उसको मोड़ नहीं सकते बिकॉज द मैट्रिक्स इज सॉलिड. बट इसमें क्या है, कार्टिलेज जो मैट्रिक्स है दैट इज सेमी सॉलिड. ओके, तो उसमें जो सेल्स है वो लेक्यूना कह लें या बीच में स्पेस कह लें, उसमें क्या होती है, एम्बेडेड होती है. जैसे आपने किसी दीवार पे देखा होगा, किसी फर्श में कुछ ऐसे स्टोन्स एम्बेडेड होते हैं, तो वैसी स्ट्रक्चर बनाता है बोन एंड कार्टिलेज. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द कनेक्टिव टिश्यू. बस ये करना है.